Welcome students. Today I will teach you English subject. Unit number 1, lesson number 2, Aesop's fable. In the last presentation, we have learned first fable, the stag in the pool. And today we are going to learn the dog in the manger. It's a second fable of Aesop. Now, look at this picture. What is here in this picture? We can see one dog, one ox in the stall. Stall means shed of cattle. It's a part of cattle's shed. Okay. What's the dog doing here? The dog is barking at the ox and the ox is standing peacefully. Okay. So today we will see what happened in this second fable. Okay, the fable name is The Dog in the Manger. Now, what is the manger? Manger means long open box in a cattle shed which contains hay for cattle. Means ये बड़ा बॉक्स रहता है जिसमें कैटल्स के लिए खाना या फिर ड्राइड ग्रास डाला जाता है. ओके. कैटल मीन्स जानवर, एनिमल्स. कैटल मीन्स जानवर like a ox, cow, horse, buffalo which live in a shed. That are cattles. Okay. So first I will read this story and you put your finger on each word and on each line. Okay. So I will read this story. Once a dog was looking for a nice and comfortable place to lie down. He came to the manger of an ox and jumped on the hay to rest. Okay, now here new word hay. Hay means dried grass. It used to as a food of animal. It's used as a food of animals. Okay, so it's a hay means dried grass. Now second para here. It was a very hot afternoon. After a while, the ox returned from the field. Field means farm. Field means farm. हिंदी में हम जिसे खेत बोलते हैं. Now, he had worked hard in the hot sun and was now quite hungry. He stood in his stall. Stall means a part of cattle shed or stable. ये शेड का एक पार्ट रहता है, इसे स्टॉल कहा जाता है. And was planning to eat the hay that was put in the manger for him. However, when he reached for the hay, the dog saw him standing in the manger. He began to bark loudly at the ox. Each time that the ox came near the hay, the dog snarled, barked, and snapped at the ox. He would not allow the ox to eat his hay. Now look here, we can see new words. Snarl. Snarl means show his teeth and made an angry noise. Here the dog show his teeth and made an angry noise. Okay. And the next new word is snapped. Snap means try to bite somebody or something. Now here the dog tried to bite the ox and he make angry noise at the ox. Okay. Oxen are generally peace-loving and patient animal. Now I read this third para. Oxen are generally peace-loving and patient animal. But finally the ox got upset. Got upset means became unhappy.
because something bad had happened and spoke firmly, Dog, if you wanted to share my dinner with me, I would not mind it, but you neither eat the hay nor allow me to enjoy it. It is of no use to you. Then why don't you let me have my favorite food? Don't begrudge others what you don't enjoy yourself. Now here again new word, begrudge. Begrudge means be unwilling to give something or unhappy that someone is getting something. Means अगर किसी का कुछ अच्छा होता है या किसी को कुछ अच्छी चीज़ मिलती है तो वो हमें अच्छा नहीं लगता, ऐसे begrudge का मीनिंग है. ओके, सो आई एक्सप्लेन दिस स्टोरी टू यू. ओके, नाउ हियर now in this story what is here? Here are a dog who was looking for a nice and comfortable place to lie down. यहाँ पे एक डॉग है जिसे आराम के लिए एक कंफर्टेबल प्लेस चाहिए थी. What? He wants a comfortable place and nice place. Then he found a manger of ox. He jumped onto the hay to rest. Then he found a manger. Manger means मैंने आपको बताया कि एक बड़ा सा बॉक्स जहाँ पे जानवरों को खाना डाला जाता है. हे मीन्स ड्राइड ग्रास वहाँ पे होता है. दिस इज़ द मैंजर. उनका खाना खाने की जो जगह होती है उस बॉक्स में खाना डाला जाता है. दिस इज़ द मैंजर एंड द डॉग फाउंड इट. वो डॉग ढूंढ लेता है और उस पर जंप करके रेस्ट करना शुरू कर देता है. आफ्टर सम टाइम ऑक्स रिटर्न टू द स्टॉल फ्रॉम द फील्ड. ही वॉज वेरी हंग्री बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क इन द हॉट सन. कुछ देर बाद वहाँ पे ऑक्स आ जाता है. उसे खाना खाना होता है बिकॉज ही वर्क हार्ड इन द हॉट सन. वो तपती धूप में काम करके थक जाता है और उसे बहुत जोर से भूख लगती है. ही बिकेम हंग्री. ही नाउ क्वाइट हंग्री एंड ही वॉन्ट्स टू ईट हिज हे. हे मीन्स ड्राइड ग्रास. उसका खाना. उसे भूख लगती है और वो खाना चाहता है. देन however he reached for the hay, the dog saw him. अभी जब वो है के पास मीन्स उस मैंजर में जो है ड्राइड ग्रास है वो खाने के लिए जाता है तो वहाँ पे जो डॉग है बार्क लाउडली. वो जोर जोर से उस पर भौंकता है. ईच टाइम दैट द ऑक्स केम नियर टू द हे द डॉग वुड नॉट अलाउ द ऑक्स टू ईट दिस हे. जब भी वो ऑक्स उस मैंजर के पास खाना खाने के लिए जाता है तब भी वो डॉग उस पर जोर जोर से बार्क करता है, भौंकता है और उससे खाना खाने के मना करता है, आने ही नहीं देता है खाना खाने के लिए. ओके, द ऑक्स बिकेम अनहैप्पी. फिर वो जो ऑक्स है वो क्या हो जाता है? अनहैप्पी, दुखी हो जाता है. एंड स्पोक फर्मली. फिर वो उस डॉग से बोलता है, आराम से बोलता है. इफ़ यू वॉन्टेड टू शेयर माई डिनर विथ मी आई वुड नॉट माइंड इट. ऑक्स कहता है कि अगर तुम्हें मेरा खाना तुम्हें चाहिए, मुझसे शेयर करना है तो मुझे कुछ बात नहीं है, मैं कर सकता हूँ तुमसे ये शेयर. बट यू कांट ईट दिस. तुम तो है खाते नहीं हो और मुझे भी ये एंजॉय नहीं करने दे रहे हो. मेरा खाना जो है वो मुझे भी नहीं एंजॉय नहीं करने दे और ख़ुद भी नहीं खा रहे हो. वाई यू डू दिस. फिर वो ऑक्स उससे कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि है तो तुम्हारे कुछ काम का नहीं है. जो ड्राइड ग्रास है इट्स नॉट अ यूज़ ऑफ यू. ये तुम्हारे खाने के काम का नहीं है एंड तुम मुझे भी अलाउ नहीं कर रहे हो खाने के लिए. वाई यू डू दिस. सो दिस स्टोरी गिव मैसेजेस दैट डोंट begrudge others what you don't enjoy yourself. मतलब जो तुम खुद एंजॉय नहीं कर सकते हो वो दूसरों को भी मना मत करो. ओके, जो चीज़ हमारे काम की ही नहीं है ऐसी चीज़ों के लिए हमें दूसरों को मना करना ही नहीं चाहिए.
ये सीख हम इस स्टोरी से सीखते हैं. Here we can see that the oxen are generally peace loving and patient animal. है कि नहीं. यहाँ पे जो ऑक्स है वो कैसा है, वेरी लविंग एंड पीसफुल, है कि नहीं. अभी देखो यहाँ पे here are new words. What is here? New words. We can see these new words which are explain you. Manger. मैंने आपको बताया कि मैंजर क्या होता है. लॉन्ग ओपन बॉक्स इन अ कैटल शेड विच कंटेन्स हे फॉर कैटल, जिसमें जानवरों का खाना होता है. नाउ हियर इज सेकेंड वर्ड इज हे, HAY, हे, ड्राइड ग्रास, मतलब जो सूखा हुआ घास होता है जो जानवर खाते हैं उसे हे कहा जाता है. नाउ स्टॉल, पार्ट ऑफ अ कैटल शेड और अ स्टेबल. मीन्स स्टॉल मीन्स ये शेड का एक पार्ट होता है जहाँ पे एक एनिमल की जगह होती है. ऐसे पूरे शेड में बहुत सारे एनिमल हो सकते हैं. सो स्टॉल इज़ अ पार्ट ऑफ कैटल शेड. देन स्नार्ल्ड, शो हिज टीथ एंड मेड एन एंग्री नॉइज. मैंने आपको बताया जैसे डॉग ऑक्स पे क्या कर रहा था, स्नार्ल्ड एंड स्नैप्ड. सो स्नार्ल्ड मीन्स शो हिज शार्प टीथ एंड मेड एन एंग्री नॉइज. देन नेक्स्ट वर्ड इज स्नैप्ड, ट्राई टू बाइट समबडी और समथिंग, मतलब किसी को बाइट करने की कोशिश करना है. दिस इज स्नैप्ड, कर रहा है वहाँ पे डॉग जो ऑक्स को स्नैप करने की कोशिश कर रहा है, बाइट करने की कोशिश कर रहा है. देन गॉट अपसेट. गॉट अपसेट मीन्स बिकेम अनहैप्पी बिकॉज समथिंग बैड हैड हैपन. उसके साथ बैड हो रहा था कि नहीं. ही वॉज सो हंग्री बट ही कांट ईट हिज food, so he became unhappy. Now next word is begrudge. Begrudge means be unwilling to give something or unhappy that someone is getting something. मतलब किसी को कोई चीज़ देने की इच्छा ही नहीं होना है, या फिर किसी का कुछ अच्छा होता है तो वो हमें अच्छा नहीं लगता है. This is begrudge. Okay, so now look here. अभी हे कैसे होता है देखो. ड्राइड ग्रास, इट्स यूज टू ईट फॉर एनिमल. ये एनिमल्स खाने के लिए यूज़ करते हैं. इट्स अ हे. ये कटिंग ग्रास रहता है जिसे कट करके ड्राइड ग्रास जो है एज अ फूड एनिमल्स के लिए यूज़ होता है. नाउ लुक हियर, दिस इज अ मैंजर विथ स्टॉल विच इज़ अ पार्ट ऑफ कैटल शेड. देखो यहाँ पे हर एक एनिमल के लिए जगह दी गई है. एंड दिस इज़ अ मैंजर. यहाँ पे मैंजर भी देखो, बहुत बड़ा सीमेंट का मैंजर हम देख सकते हैं, उसमें ड्राइड ग्रास डाला गया है. दिस इज़ अ मैंजर विथ स्टॉल विच इज़ अ पार्ट ऑफ कैटल शेड. नाउ लुक हियर, वी कैन सी हियर अ डॉग विच इज snarled and snapped. The dog who is snarling and snapping, same as the dog which we seen in this fable or story. जैसे हमने स्टोरी में वो डॉग देखा कि नहीं, कि वो ऑक्स के ऊपर जोर से भूख रहा था, स्नैप्ड, उसे काटने की कोशिश कर रहा था, like this dog. Okay, so today we have learned Aesop's fable, The Dog in the Manger. We got the message from stories that you must not begrudge others what you don't enjoy yourself. You have to write new words in your notebook which are given. जो मैंने आपको अभी वर्ड्स वहाँ पे बताए वो आपको आपकी नोटबुक में राइट करने हैं. Now which message we got here? We got that you must not begrudge others that what you don't enjoy yourself. Okay, I hope you enjoy this story and also understand this story. So thank you. Bye.